Everyone, welcome to my channel IELTS Easy with Priya. Hope you all are doing great and preparing for your IELTS exam perfectly. आज हम IELTS के एक नए क्यू कार्ड के बारे में जानने वाले हैं. The cue card is describe a long walk you ever had. इसके जो सब क्वेश्चंस हैं, those are when this happened, where you walked, who you were with, and explain how you felt about the walk. So before continuing with the answer, before continuing how to write or speak about this same cue card, I just want to let you know that the final list of Makkad has also been uploaded. It consists of around 86 cue cards in the list. We will be soon updating all the cue cards with full-fledged details along with vocabulary and mind-blowing cue cards for you people so that you can get all your desired bands and fulfill your requirements for IELTS, whether it is 6, 7, 8 or more than that. If you want to get that list of Makkad, you can WhatsApp me on the given number on the screen. And if you are new to my channel, do not forget to subscribe, like and share it with others so that every newcomer, every student who is preparing for this exam and spending hefty amounts of money and still cannot get what he or she has to actually prepare. I have heard a number of students saying that, madam, cue card is the only area where I feel scared of, speaking on something at a stretch makes me feel petrified of. मुझे बहुत डर लगता है. So this is nothing about to worry or being anxious for the same. You just have to follow some steps. You just have to inculcate or learn some kind of vocabulary related to the topic. Try to cook up anything that you can. Nobody is gonna say you or fine you or punish you or deduct your band for creating any sort of story. So just try to be a good storyteller and you will definitely, believe me, you will definitely be able to cook up or create any cue card. Basically आप लोग किस में मार खाते हो? बातें बनाने में. क्यू कार्ड में करना क्या है? बातें बनानी है. देखिए हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब ए लॉन्ग वॉक यू एवर हैड. अब बताइए डिस्क्राइब ए लॉन्ग वॉक. क्या कभी आप वॉक पे नहीं गए? नॉर्मल वॉक पे जाते हैं, वो भी तो लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उनका इंटेंशन है कि आप थोड़ा सा ज्यादा लंबी वॉक पे चले गए. When this happened, कब गए? Where you walked, कहाँ पे गए? अब पहले तो कब गए? कब हो सकता है कल गया, एक हफ्ता पहले गया, एक महीना पहले गया, कैन बी एनी टाइम. फिर कहाँ गए? कहाँ पे लोग सैर करने जाते हैं? बताइए. पार्क में जाते हैं, जिम्स में भी आप लोग वॉक करते हो. और यू कैन सिंपली से कोई स्टेडियम में चले गए, आप रोड साइड पे चले गए. अब इससे इजी और क्या हो सकता है? Who you were with. अब यूजली हम किसके साथ जाते हैं? घर पे फैमिली मेंबर्स के साथ. अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, कई लोगों को ऐसी आदत होती है, दे कैन नॉट इवन skip their exercise or they walk, so they go for the same no matter what sort of situation or weather is. तो यहाँ तक आप बना सकते हो and explain how you felt about the walk. तो लंबी वॉक पे क्यों चले गए, यहाँ पे हमने स्टोरी बतानी है. अब देखिए इसमें कितना सिंपल हो सकता है. हम विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करने वाले हैं. हमने कैसे शुरू किया? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन मैनी ऑफ माई क्यू कार्ड्स मेंशन्ड एंड एक्सप्लेन्ड बिफोर, जब भी कोई क्यू कार्ड बोलना है उसकी जनरल लाइन से उसको लिंक करिए. अब ये वाला क्या है? वॉक से रिलेटेड है. अब बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, क्या हम इसमें बोल सकते हैं कि ये बचपन से आप लोग एक प्रोवर्ब सुनते आए होंगे, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय. कि अगर हम सिर्फ काम, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो ऑफिस वर्क है, इससे कोई भी इंसान डल बन जाता है. उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाती है. तो हम इसको शुरू कर रहे हैं. लुक एट द स्क्रीन. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. नहीं याद होता? आई एम अ पर्सन हु इज हेल्थ फ्रीक. यू कैन से कीपिंग दिस इन माइंड, आई ऑलवेज गो फॉर वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग. अब मॉर्निंग में भी जा सकते हो, इवनिंग में भी जा सकते हो, और यू कैन से और इन द इवनिंग, नो मैटर व्हाट द वेदर इज. अब गर्मी है, ठंड है, बारिश है, वॉट एवर द वेदर इज. एंड ओवर हियर आई वॉन्ट टू शेयर एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट. एनेक्डोट होता है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट.
When I walked a really long distance, जब मैं एक इतने लंबे डिस्टेंस पे चला, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है सबसे पहले कब, तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। आई क्लियरली रिमेंबर व्हाट डू यू रिमेंबर लास्ट मंथ। देखिए तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। आई एंड माई कजन्स विजिटेड माई अंकल्स प्लेस। अब अंकल्स का प्लेस का मतलब होता है मामा का घर, चाचा का घर। फाइन, कहाँ पे है? इन ए टाउन। देखिए मैं कैसे इसको कनेक्ट करूंगी। वी ऑल शेयर सो ग्रेट बॉन्ड दैट वी डोंट लीव एनीवन अलोन टिल वी आर टुगेदर। अब मैं और मेरे कजन्स इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, अगर हम किसी प्लेस पे इकट्ठे होते हैं तो हम किसी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। सो वी वेंट फॉर ए नॉर्मल मॉर्निंग वॉक टुगेदर एज ए ग्रुप इन द मॉर्निंग। अब हमने क्या किया, अर्ली इन द मॉर्निंग में आप चले गए, हम एक वॉक के लिए गए एज ए ग्रुप। तो जैसे होता है ना बचपन में मामे चाचे के घरों पे हम लोग इकट्ठे होते थे, तो वो जो मुलाकातें उस टाइम पे सब इकट्ठे होके ग्रुप में बना के वो जो मज़े होते थे ना, वो आजकल की जनरेशन इज गोना मिस। ऐसे मोमेंट्स है ही नहीं कि बच्चे इकट्ठे हों और वो वॉक पे जाएं। सो देखिए, आई हैव जस्ट इनकलकेटेड अ स्टोरी ऑफ माई ओन चाइल्डहुड। हमने क्या किया, देखिए एज वी सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है घर से हम निकले, फ्रॉम आवर होम। वी सॉ, हमने क्या देखा, द स्ट्रीट्स, गलियां कैसी थी, डिजर्टेड थी, ठीक है जी, डेसोलेटेड थी, जहां पे कोई नहीं था, यू कैन से, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू वॉकर्स। अ फ्यू मतलब गिने चुने बंदे दिख रहे थे। एज इट वॉज विंटर्स और इट वॉज कोल्ड, यहाँ पे आप बोल सकते हो। अब द नेचर वॉज एट इट्स बेस्ट, नेचर बड़ी मजेदार थी। बर्ड्स वर चॉपिंग, सिंपली बर्ड्स वर चॉपिंग और ट्वीटिंग, यू कैन से एनीथिंग। अब देखिए हमने 2 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया हुआ है, कब गए थे, किसके साथ गए थे, ठीक है जी। और हम तीसरे में भी आ गए कि कहाँ, ठीक है जी, कहाँ थे, स्ट्रीट पे थे, रोड पे थे। नेचर वॉज एट इट्स पीक एज बर्ड्स वर चॉपिंग, ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑन द रोड साइड। अब रोड साइड की बात कर रहे हैं। गेव सोलेस टू माई माइंड एंड फीस्ट टू आइज। जो बच्चे तो 7 to 8 बैंड एस्पायर कर रहे हैं, तो दे शुड एक्चुअली मस्ट आई मस्ट से कि उनको ये वोकैबुलरी डालना बहुत ज़रूरी है। एंड दोज हु आर जस्ट एमिंग फॉर 6, अगर उनको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप ये बोल सकते हो कि आई एक्चुअली फेल्ट ओवरजॉयड बाय लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स एट द रोड साइड। तो जहाँ पे आपको जो फ्लावर्स दिखे थे उसने आपको बड़ा ही खुश किया। अब देखिए हमने थोड़ा थोड़ा जगह के बारे में बता दिया कि यू वर ऑन द रोड, तो कैसा आपको लग रहा था, कहाँ पे आप। अब था हाउ यू फेल्ट इट। अब हमने यहाँ पे बताना है कि लंबी वॉक कैसी हो गई हो, अभी तक नहीं आया, तो वी आर गोइंग टू ऐड दैट। देखिए वी वर सो एक्साइटेड ऑन दैट डे, हम इतने एक्साइटेड थे। एंड वॉकिंग बिकेम मोर एंटाइसिंग, हमारे लिए इतने एक्साइटेड थे अपनी गॉसिप में, वॉकिंग क्या हुई और इंटरेस्टिंग हो गई। एंटाइसिंग को आप इंटरेस्टिंग बोल सकते हो। एज वी केप्ट ऑन टॉकिंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे से बातें करी जा रहे थे। केप्ट ऑन टॉकिंग मतलब देखिए आप सैर कर रहे थे तो डेफिनेटली देयर वाज ए मूवमेंट, तो बातें करी जा रहे थे विद ईच अदर, शेयरिंग अ लॉट ऑफ ओल्ड मेमोरीज एंड इंसिडेंट्स ऑफ योर स्कूल एंड कॉलेज विद ईच अदर। अब मैंने यहाँ पे बताया कि हम लंबी वॉक पे चले गए क्योंकि we didn't even notice, we were so engrossed, we got so busy and lost in the conversations कि हम चलते ही गए बातें करते करते। या now we are using another connector. Besides, we felt nostalgic, हम बड़ा मजे फील कर रहे थे, nostalgic पुरानी यादें ताज़ा करते हुए। while recalling का होता है दोबारा से याद करते हुए। moments of pleasure we shared, जो खुशी के पल हमने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में आपस में शेयर कर रहे थे उसके बारे में। तो अब आपको कैसा लगा, इतना लंबा चल के, पहले हमने बताना कितना चले। ऑल ऑफ अ सडन, तो रियलाइजेशन हुई कि आपको कैसा लगा। ऑल ऑफ अ सडन द रेज क्या है, किरणें, बिकेम ब्राइटर, मतलब देखिए सर्दियों में वैसे ही सन राइजेस लेट, तो सन ब्राइट हो गया,
रेज जो है वो ब्राइटर हो गई एंड वी फाउंड आवरसेल्फ क्राउडेड विद हैवी व्हीकल्स। यहाँ पे मैंने एक कंट्रास्ट दिखाया, देखिए स्टार्टिंग में हमने किया था रोड्स वर डेजर्टेड, रोड्स वर आइसोलेटेड, रोड्स वर डेसोलेटेड, वहां पे कोई नहीं था। अब क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन रोड्स क्या हो गई, क्राउडेड हो गई विद हैवी व्हीकल्स, बड़े बड़े भारी व्हीकल्स आने शुरू हो गए। तो हमें कैसा लगा, देन वी रियलाइज दैट वी रीच्ड फार फ्रॉम आवर हाउस। तो अब क्या हुआ, तो ऑल ऑफ अस, अब क्या था, देन वी रियलाइज्ड, हमने क्या रियलाइज किया, दैट वी रीच्ड फार फ्रॉम आवर हाउस एंड कवर्ड ऑलमोस्ट 10 miles ऑफ डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि एक बहुत लंबी वॉक थी, 10 miles ऑफ डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। तो ऑल ऑफ अस स्टेयर्ड एट ईच अदर एंड गीगल्ड, गीगल्ड मतलब मन ही मन हंसने शुरू कर दिए, मंद मंद मुस्काना, तो दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड दैट, हम एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे थे, किस बात पे, दैट हाउ डीपली वी एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड का मतलब होता है वी लॉस्ट इन गॉसिपिंग, उसमें इतना खो गए बातों में, जो चुगलियां, जो बातें जो हम शेयर कर रहे थे, दैट वी कुड नीदर फेल्ट, ना तो हमें क्या महसूस हुआ, फटीग, ना तो हमें थकावट महसूस हुई, नोर नोटिस द डिस्टेंस वी कवर्ड, ना हमें ये महसूस हुआ कि भाई इतना लंबा निकल चुके हैं। अब what could be funnier than that we lost the way to go back home, इससे भी पूरी बात क्या थी, हम अपने घर जाने का रास्ता ही भूल गए। तो आर फैमिलीज गॉट टेंस्ड टू, अब देखिए पहुंचे नहीं थे तो फैमिलीज को भी थोड़ी थोड़ी परेशानी तो होगी ना भाई कि कहाँ चले गए। तो वी देन हायर्ड, अब देखिए हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि वी वेंट टू अ टाउन और अ विलेज, जो भी आपकी सिचुएशन है, तो वी देन हायर्ड अ टोंगा और ऑटो रिक्शा और अ टैक्सी, यू कैन से एनीथिंग, एंड केम बैक होम, हम घर आ गए विद अनदर लाइफ टाइम मेमोरी इंस्क्राइब्ड ऑन आवर हार्ट्स, एक ऐसी ताज़ा याद जो कभी ना मिटने वाली थी। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो कभी नहीं मिटने वाली, इंस्क्राइब्ड ऑन आवर हार्ट्स, वो एक याद, एक मेमोरी, एक किस्सा। हम बचपन के किस्से सबको सुनाते हैं, सो दिस कैन बी वन ऑफ द मेन किस्साज, कि हम भाई बातों बातों में कहीं चले गए। और मुझे ये लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा इन देयर चाइल्डहुड, दे मस्ट हैव लॉस्ट द वे, और आपके साथ ऐसा कहीं ना कहीं फॉर श्योर हुआ होगा। अगर हाँ, तो यू जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स कि आपके साथ कैसा हुआ था। इससे क्या होता है, वाइल शेयरिंग हाउ कैन वी हेल्प, लोगों को आइडियाज में बहुत हेल्प मिलती है। जो बच्चे आइडिया जनरेशन में प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, दे प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आप लोगों को ये क्यू कार्ड पसंद आता है, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, उनसे क्यू कार्ड्स नहीं बनते हैं, स्पेसिफिकली जिनको 8777 की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस इन लुधियाना एट एम्बियंस लर्निंग्स अकेडमी। तो उसका एड्रेस हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कनेक्ट अस विद आवर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, कहीं पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट सून 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं एट ए वेरी वेरी फीजिबल प्राइस, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप IELTS Easy with Priya of course, the number is given on the screen। तो आप बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू सेंड द मैसेज एंड वी विल बी एडिंग यू। थैंक यू, गुड बाय, enjoy learning, stay safe, stay at home, bye bye।